Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study influence of religion and sects on society. So let's start the lecture and understand what is religion. See, religion is defined as a social cultural system, right? So religion is defined as a social cultural system of designated behaviors, practices, morals, beliefs, worldviews, text, sanctified places, ethics and organizations that generally relates humanity to supernatural, transcendental and spiritual elements. Also we can define religion, right, through this definition. So according to Durkheim, religion is an organized system. Religion is an organized system of beliefs and rituals associated with sacred things that unite people into a moral community through faith and rituals. Right? Now we will understand dharma. Right? I have told you that religion is related with belief in supernatural human, right, supernatural power and a cultural practice, whereas dharma is different from religion. Right? So जो धर्मा है उसको हम इन दो डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं. Right? So according to Dr. Radhakrishnan, the principles according to which we live our daily life, right? The principles according to which we live our daily life and by which social relations are established, that is religion. And religion is the truth of life and the determining force of our nature. So religion is the determining force in our nature, and religion is the truth of life, and religions, right, the principles according to which we live our daily life and by which our social relations are established, right, that is religion. And according to P.B. Kane, religion is not a belief, it is way of life or system of conduct which provides vitality as an individual and as a member of society. Religion regulates the behavior of a person and develops personality, right? So धर्मा इज द वे ऑफ लाइफ, राइट. तो ये हमने यहाँ पर धर्म और रिलीजन दोनों के बारे में समझ लिया है, राइट. In the previous lecture we have studied different influence of different religion and sects on Indian society, right. Now we will study Islam and influence of Islam on Indian society, right. So let's study Islam, or we can say that Muslim religion. See, at first we would understand कि इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई. See, Islam was founded in Makkah by Hazrat Muhammad, right. So Islam was founded in Makkah by Hazrat Muhammad. The life of Hazrat Muhammad is between 570 to 632 AD. क्या हुआ था कि जो अरब वर्ल्ड था, राइट, अरब वर्ल्ड में द देन टाइम देयर वर इविल्स, सुपरस्टिशंस, डिसऑर्डर्ड एंड ऑस्टेंटेशन, राइट. ये उस समय अरब वर्ल्ड में क्या था, प्रिवलेंट थे, राइट. और मोहम्मद साहब इनसे क्या थे, डिस्प्लीज्ड थे, right. So Muhammad Sahab was displeased with the evils, superstitions, disordered and ostentations prevalent in the then Arab world और अरबिया, राइट. और वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते थे, एक ऐसा सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे ताकि ये सभी इवल्स या जो सुपरस्टिशंस हैं ये समाप्त हो जाए, राइट. एंड फॉर दैट उन्होंने रिलीजियस और कल्चरल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, जिसे ही क्या कहा जाता है, इस्लाम कहा जाता है, राइट. सो इस्लाम को प्रिपेयर करने के लिए और पब्लिक को इस्लाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए he strongly opposed the superstitious practices and ostentations, right, prevailing in the then Arabic society. तो कुल मिलाकर अगर हम ये टाइम पीरियड लें, राइट, बिटवीन 570 to 632 AD, राइट. In this time period there were evils, superstitions, disorder and ostentations prevalent in
अरब वर्ल्ड और वी कैन से दैट अरबिया। और इन सब को दूर करने के लिए, एक सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए ही राइट जो कल्चरल सिस्टम या जो रिलीजियस सिस्टम इस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद साहिब, वही इस्लाम के नाम से जाना जाता है राइट। और लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए मोहम्मद साहब स्ट्रांगली अपोज्ड द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस और ऑस्टेंटेशन को जो है उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था राइट। अगर हम देखें तो जो इस्लाम रिलीजन है राइट, इस्लाम रिलीजन बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड दैट इज गल्ला राइट। तो एक ही गॉड में जो है विश्वास करते हैं और वो गॉड क्या है, अल्लाह के नाम से जाना जाता है राइट। सो इस्लाम रिलीजन बिलीव्स इन ओनली वन गॉड एंड दैट इज अल्लाह। और ऐसा माना जाता है कि अल्लाह सेंड्स हिज मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स राइट। तो जब कभी भी सोसाइटी में या समाज में जो सोशल इविल्स हैं या सोशल डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है तो अल्लाह उसके प्रॉफिट्स को भेजता है ताकि जो इविल्स हैं और जो सिन स्प्रेडिंग सोसाइटी में हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके राइट। सो इस्लाम बिलीव्स दैट अल्लाह सेंड्स हिज प्रॉफिट्स टाइम टू टाइम and Allah liberate human beings from the evils and sins spreading in the society right। और मोहम्मद राइट जो मोहम्मद साहब थे वो इसी तरीके के लास्ट क्या थे, प्रॉफिट थे राइट। एंड हु वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह राइट। और अल्लाह का जो एंजल थे जब्रियल राइट। सो जब्रियल ने मोहम्मद साहब को इस ईवल से निपटने के लिए नॉलेज प्रोवाइड कराया राइट। और वही नॉलेज जो है उसको प्रोपोगेट किया मोहम्मद साहब ने। तो मोहम्मद साहब वाज द लास्ट प्रॉफिट राइट सेंट बाय अल्लाह राइट टू इराडिकेट द इविल्स एंड सिंस स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर मोहम्मद साहब के आइडियाज़ के बारे में बात करें राइट। सो मोहम्मद आइडियाज़ डिड नॉट मैच विद द ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम ऑफ अरेबिया, क्योंकि जो सुपरस्टिशंस थे, जो इविल्स थे राइट, उनके अगेंस्ट में मोहम्मद साहब एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते थे राइट। और इसीलिए ये जो आइडियाज़ थे, मोहम्मद साहब के जो आइडियाज़ थे राइट, या उनका जो रिलीजियस सिस्टम था या जो कल्चरल सिस्टम था वो ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम के अगेंस्ट था या कॉन्फ्लिक्ट में था। इसीलिए जो ट्रेडिशनल राइट या जो कंजर्वेटिव अरब सोसाइटी थी राइट, दे अपोज्ड मोहम्मद साहब। और कई रिफॉर्मिस्ट व्यू की वजह से राइट, रिफॉर्मिस्ट जो व्यूज़ मोहम्मद साहब के थे उसकी वजह से मोहम्मद साहब को जो है मोहम्मद साहब वाज अपोज्ड राइट। और इसीलिए ही हैड टू लीव मक्का एंड टेक रिफ्यूज इन मदीना इन 622 AD। और यहीं से इस्लाम धर्म का जो है प्रोपगेशन स्टार्ट हुआ है राइट। जब 632 में मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद साहब की डेथ हो चुकी थी राइट, उसके बाद में जो खलीफा था राइट, उसको मोहम्मद साहब का जो है सक्सेसर माना गया था राइट। और जो खलीफा की पोस्ट थी या जो कैलिफ पोस्ट थी या खलीफा था, उसको फिर तुर्किश जो रूलर मुस्तफ़ा कमाल पाशा राइट, इन्होंने इस पोस्ट को क्या कर दिया था, एबोलिश कर दिया था। इसके साथ ही जो मुस्लिम धर्म है राइट, मिलाद उन नबी इज़ द सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ क्या, मोहम्मद। तो ये फेस्टिवल जो है वो जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो खलीफा की पोस्ट है ये भी वर्तमान समय में नहीं है राइट, क्योंकि इस पोस्ट को समाप्त किसने किया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को राइट। तो जैसे ही मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी 632 AD में, उसके बाद में जो उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस्लाम धर्म को जो है उसका प्रोपोगेशन किया था राइट। और जब जो सेंट्रल एशिया के जो इन्वेडर्स थे, जब वो इंडिया आए तो इस्लाम धर्म को भी इंडिया ले आए राइट। और जो इस्लाम था वो इन्वेडर्स के माध्यम से इंडिया आया। सो इस्लाम वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द अरब इन्वेडर्स। सो अरब इन्वेडर्स वर द फर्स्ट टू टेक इस्लाम रिलीजन इन इंडिया। अरब्स ने सबसे पहले सिंध को कॉन्कर किया था और सिंध में ही फिर जो है इस्लाम धर्म का
इस्टेब्लिश हुआ और वहाँ से धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में जो है प्रोपोगेट हो गया। और वर्तमान समय में हम ये कहें कि इंडिया में भी जो है मुस्लिम या इस्लाम रिलीजन के जो है फॉलोअर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से इस्लाम रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, राइट। नाउ वी विल सी द सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। सो इस्लाम के दो सेक्ट हैं, पहला क्या हो जाएगा, शिया इस्लाम सेक्ट एंड सुन्नी इस्लाम सेक्ट, राइट। यहाँ पर जो शिया और सुन्नी इस्लाम सेक्ट है, इसमें से पहला अंतर तो ये है कि शिया इस्लाम सेक्ट इज अ लिबरल इस्लाम सेक्ट और जो सुन्नी है वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशनिस्ट इस्लाम सेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ था कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद साहब इन 632, राइट, द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम रिलीजन हु चोज हजरत अली एज देयर इमाम और खलीफ, राइट। तो जिन लोगों ने हजरत अली को उनका इमाम और खलीफा चूज कर लिया था, उनको सियाने अली कहा गया और उन्हें ही जो है शिया इस्लाम कहा जाता है। और अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली ये लिबरल होते हैं, साथ ही साथ इनकी जनसंख्या पूरी दुनिया में केवल और केवल कितनी है, 15% है, राइट। सो शिया इस्लाम, द फॉलोअर्स ऑफ शिया इस्लाम सेक्ट आर 15% ऑफ द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट जो सेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सुन्नी इस्लाम सेक्ट हो जाएगा, राइट। सुन्नी इस्लाम सेक्ट, जो फॉलोअर्स ऑफ सुन्नी इस्लाम सेक्ट हैं, दे फॉलो हजरत मोहम्मद और हजरत मोहम्मद के जो भी बिलीफ्स हैं, राइट, या आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। साथ ही साथ जो सुन्नी इस्लाम सेक्ट है दैट इज 80% टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम, राइट। और ये इनमें भी कई सेक्ट हैं, जैसे देवबंदी हनाफी हो जाएगा, राइट, अल हदीस हो जाएगा, राइट। सो देवबंदी हनाफी हो जाएगा, राइट, अल हदीस हो जाएगा, राइट, अहले सुन्नत वाला जमात हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, सुन्नी इस्लाम सेक्ट के सब सेक्ट हो जाएंगे, क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इस्लाम या मुस्लिम रिलीजन। सो इस्लाम रिलीजन के जो सोर्सेज हैं वो पहला क्या हो जाएगा, कुरान शरीफ हो जाएगा। सो कुरान शरीफ इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लाम। देन सेकेंड सुन्ना एंड थर्ड इज हदीस, राइट। नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ इस्लाम, राइट। सो इस्लाम रिलीजन के फीचर्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, बिलीव इन ओनली वन गॉड, राइट, दैट इज अल्लाह। तो जो मुस्लिम रिलीजन है वो केवल और केवल एक ही गॉड में विश्वास करते हैं, राइट, बिलीव इन ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह। और अल्लाह इविल्स को या जो सुपरस्टिशंस हैं या सोशल डिसऑर्डर को सुधारने के लिए, राइट, टाइम टू टाइम उसके प्रॉफिट्स को क्या करता है, भेजता है। सेकेंड फेथ इन हेवन एंड क्या हो जाएगा, हेल हो जाएगा, राइट। तो जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसको हेवन मिलता है और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा या जो आइडियोलॉजी है या फिर जो बिहेवियर्स हैं, जो एक्सेप्टेड बिहेवियर्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, सो उसको हेवन मिलेगा। ये ऐसा फेथ जो है वो इस्लाम धर्म में है। देन देयर इज इक्वालिटी इन इस्लाम रिलीजन हो जाएगा, राइट। अदर जो रिलीजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इस्लाम में उतनी ज़्यादा जो है कास्ट सिस्टम नहीं पाया जाता है। सो वी कैन से दैट देयर इज इक्वालिटी। बट ये भी उतना ही सच है कि इस्लाम या इस्लाम रिलीजन में भी जो शिया है देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शिया एंड सुन्नी सेक्ट, राइट। सो इस्लाम में इक्वालिटी है, कास्ट सिस्टम नहीं है। देन फेथ इन एंजल्स, राइट। और जो कुरान की जो होली बुक है वो क्या है, कुरान है, राइट। सो द होली बुक जो कि इस्लाम धर्म की है वो हो जाएगी कुरान। देन अल्लाह जो है बिलीफ इन ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह, और उसको ही जो डेस्टिनी है उसका क्रिएटर माना जाता है। और इम्यूटेबिलिटी ये जो है इस्लाम के क्या हो जाएंगे, फीचर्स हो जाएंगे, राइट। नाउ वी विल सी द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी हो जाएगा। अब जो इन्फ्लुएंस है उसको हम कई भागों में जो है सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड हियर 11 मार्कर क्वेश्चन में बी आस्क्ड,
राइट 11 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बौद्ध रिलीजन, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ बौद्ध रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी। और 11 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी। राइट, तो इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी, उसको हम कई भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड क्या हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा। देन इफेक्ट ऑन लैंग्वेज हो जाएगा। थर्ड इज इन्फ्लुएंस ऑन आर्किटेक्चर हो जाएगा। फोर्थ इफेक्ट ऑन क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। एंड फिफ्थ इन्फ्लुएंस ऑन क्या हो जाएगा, रिलीजन हो जाएगा। देखिए, यदि किसी रिलीजन को किसी भी किंग या क्वीन के द्वारा पेट्रोनेज किया जाता है, सो डेफिनेटली उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट ज़्यादा ही रहेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि चाहे वो मुगल पीरियड हो, राइट, मुगल पीरियड हो या दिल्ली सल्तनत पीरियड हो, उस पीरियड में जितने भी जो बादशाह थे, राइट, बादशाह थे, राइट, या सुल्तान थे, या जो भी एम्परर थे, या जो भी किंग थे, उन्होंने इस्लाम को पेट्रोनाइज किया था। इसीलिए एक लंबे समय तक सोसाइटी पर इस्लाम का जो है इन्फ्लुएंस रहा है। और इसीलिए सोसाइटी के जितने भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो या लिटरेचर फील्ड हो या लैंग्वेज की फील्ड हो या आर्किटेक्चर की फील्ड हो, सब में इस्लाम का जो है इन्फ्लुएंस रहा है। इसके साथ ही जो इस्लाम है वो सेंट्रल एशिया के अरब हैं या तुर्की हैं, राइट, तो अरब इन्वेडर्स, तुर्क इन्वेडर्स के माध्यम से इंडिया में आया है। इसीलिए इस्लाम का इन्फ्लुएंस तो इंडियन सोसाइटी पे पड़ा ही है। इसके साथ ही द सोशल सिस्टम विच वर प्रिविलेंट इन सेंट्रल एशिया और अरब, राइट, उसका इन्फ्लुएंस भी जो है इंडियन सोसाइटी पर देखा जाता है। राइट, सो द फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड क्या हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा। सो इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम रिलीजन ऑन एजुकेशन एंड लिटरेचर। सी, व्हेन द इस्लाम रिलीजन वाज ब्रॉट टू इंडिया, तो उसका हमारे लिटरेचर पर और एजुकेशन पर ह्यूज इन्फ्लुएंस था। राइट, इन इंडिया के लोग थे या इंडिया के जो नेटिव्स थे, राइट, दे स्टार्टेड स्टडिंग अरबिक पर्शियन लैंग्वेज। राइट, कई बार तो जो दिल्ली सल्तनत है या फिर हम बात करें मुगल पीरियड की बात करें, तो वहाँ पर कई एम्परर ने या किंग ने जो अरबी लैंग्वेज थी या पर्शियन लैंग्वेज की थी, उसको कोर्ट लैंग्वेज जो था डिक्लेयर कर दिया था। राइट, सो बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज एज अ कोर्ट लैंग्वेज, जो यहाँ के लोग थे उन्होंने अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस को जो है लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ कई जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने एजुकेशन को भी पेट्रोनाइज किया था। साथ ही साथ इंडिया में मैनी मदरसास वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, और उन मदरसास में जो इस्लामिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराया गया था। इसके साथ ही कई मुस्लिम रूलर्स जैसे फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। राइट, फिरोज शाह तुगलक ने सम टेक्स्ट ऑफ फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी, राइट, तो फिलोसफी के कई टेक्स्ट को और एस्ट्रोलॉजी के कई टेक्स्ट को जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक ट्रांसलेटेड टेक्स्ट ऑफ फिलोसफी एंड एस्ट्रोलॉजी इन पर्शियन लैंग्वेज। इसके साथ ही इस्लाम का जो प्रभाव था, राइट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, राइट, जो जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत। राइट, और जो पद्मावत है उसको हिंदी का एक क्या माना जाता है, मास्टरपीस माना जाता है। राइट, फिर इफ वी टॉक अबाउट अमीर खुसरो, राइट, सो अमीर खुसरो ने भी हिंदी के लिटरेचर को, राइट, हिंदी के लिटरेचर को और अधिक बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राइट, एंड अमीर खुसरो was a good scholar of हिंदी। राइट, और जो 14th सेंचुरी थी उसमें अमीर खुसरो ने जो पहेलियां हैं या मुकरियां हैं, राइट, उनकी शुरुआत की थी। साथ ही साथ अमीर खुसरो ने ही जो उर्दू लैंग्वेज है, राइट, उसको भी एक तरीके से बढ़ावा दिया था। साथ ही साथ गुरु नानक देव, राइट, तो जो सिख धर्म के गुरु नानक देव थे, राइट, गुरु नानक आल्सो प्रेजेंटेड हिज वर्क इन गुरुमुखी लैंग्वेज, और उन्होंने गुरुमुखी लैंग्वेज में जो है अपने
व्यूज़ को या जो आइडियाज़ थे या व्यूज़ थे उनको गुरुमुखी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया था। और गुरु नानक थे, राइट, गुरु नानक ने भी अपने लिटरेचर में जो पर्सियन या इस्लाम से या जो सूफी सेंट्स थे, राइट, सूफी सेंट्स की जो टीचिंग्स थी, सूफी सेंट्स की जो आइडियोलॉजी थी या टीचिंग्स थी, उनको भी गुरु नानक साहब ने जो है अपने गुरुमुखी लैंग्वेज में जो है प्रेजेंट किया था। इसके साथ ही, राइट, एक और ऐसा माना जाता है कि जो एक और यहाँ पर जो इस्लामिक, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सूफी लिटरेचर था या इस्लामिक लिटरेचर था वो इम्प्रूव हो रहा था। और इसके साथ ही इसके इन्फ्लुएंस में ही जो कृष्ण भक्ति लिटरेचर है, राइट, वो भी ब्रज भाषा में अच्छा खासा लिखा जा रहा था। So we can say that there was a positive impact on local literature, right, or local language literature. For an example, ब्रज भाषा लिटरेचर, अवधी लिटरेचर, राइट, अवधी लिटरेचर, ब्रज भाषा लिटरेचर जो था वो भी इम्प्रूव हो रहा था। साथ ही साथ जो हिंदी लैंग्वेज है वो तो इम्प्रूव हो रही थी, जो लिटरेचर ऑफ मराठी है, गुजराती है, बंगाली लैंग्वेज है, राइट, उनमें भी एक तरीके से इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो कई वर्ड्स हैं, राइट, पर्सियन वर्ड्स हैं, अरबिक वर्ड्स हैं, तुर्किश वर्ड्स हैं, राइट, सो मैनी पर्सियन, अरबिक एंड तुर्किश वर्ड्स वर इंक्लूडेड इन हिंदी लैंग्वेज, राइट, और हिंदू लैंग्वेज में आए तो उससे हमारी हिंदी की जो है डिक्शनरी वो भी क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है, राइट। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब हिंदी लैंग्वेज में ही जो पर्सियन है या अरबिक है या तुर्किश लैंग्वेज है उसके वर्ड्स को जो है ऑब्जर्व किया गया और उसी से फिर जो उर्दू लैंग्वेज है, राइट, उर्दू लैंग्वेज क्या हुई है, डेवलप हुई है। सेकेंड इफेक्ट ऑन क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा, राइट। सो इन अर्लियर इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो बिफोर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया जो फ्रेस्को पेंटिंग्स थी, राइट, इन केव्स में, फॉर एन एग्जाम्पल अजंता केव्स, एलोरा केव्स, सो इन केव्स और भीमबेटका केव्स, तो केव्स में फ्रेस्को जो पेंटिंग्स थी वो इंडिया में प्रेवलेंट थी। लेकिन जो पेंटिंग्स थी, राइट, आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम जो हिंदू पेंटिंग्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस हुई हैं, राइट। और अगर हम देखें तो पेंटिंग को जो है मुगल पीरियड में पैट्रोनेज मिला था और मुगल पीरियड में जो इस्लाम की इन्फ्लुएंस से कई प्रकार की डिफरेंट जो पेंटिंग कैटेगरी थी वो इम्प्रूव हुई हैं। साथ ही साथ जो हिंदू पेंटर्स थे, राइट, वो भी जो है जो थे पेंटिंग में बहुत ही प्रोफिशिएंट हो चुके थे। इसके साथ ही जो सब्जेक्ट थे पेंटिंग के, राइट, पेंटिंग की टीचिंग्स हो, पेंटिंग के सब्जेक्ट हो, इस पर काफ़ी चेंज आया था। सो वी कैन से दैट देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग एंड टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, राइट। तो पेंटिंग की जो टेक्निक्स थी उनमें चेंजेस आए, साथ ही साथ जो पेंटिंग के सब्जेक्ट्स होते थे, राइट, उनमें भी क्या हुई, काफ़ी चेंजेस आए, राइट। तो पेंटिंग के सब्जेक्ट्स में चेंजेस आए, टेक्निक्स में जो है चेंजेस आए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पेंटिंग था उस पे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए। और वी कैन सी दैट एट द टाइम ऑफ जहांगीर, राइट, जो पेंटिंग का स्वर्ण काल माना जाता है, दैट इज जहांगीर्स टाइम पीरियड, राइट, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, राइट, दैट इज कंसिडर्ड एज जहांगीर्स टाइम पीरियड माना जाता है। तो उसमें जो पेंटिंग की टेक्निक थी और जो पेंटिंग के सब्जेक्ट थे उसमें काफ़ी वेरिएशन आए थे। थर्ड इज क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज हो जाएगा। क्लियर, सी Islam was brought to India by foreign invaders, for an example Arab invaders and Turkish invaders। तो जो अरब इन्वेडर्स थे और तुर्किश इन्वेडर्स थे, जब उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया सो उन्होंने अपने एम्पायर को इंडिया में भी इस्टेब्लिश किया। और इस तरीके से जो तुर्किश लैंग्वेज हो या अरब लैंग्वेज हो या उनके कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमारी लोकल लैंग्वेजेस में मर्ज होते चले गए, राइट। और मैनी तुर्किश एंड पर्सियन जो वर्ड्स थे वो इंडिया में
यूज़ किए जाने लग गए। और जब तुर्किश और जो पर्सियन वर्ड्स थे, जब उनको हिंदी में मर्ज किया गया या एब्जॉर्ब किया गया, तो उस हिंदी को ही ज़बान ए हिंदी कहा गया। और वही ज़बान ए हिंदी फिर बाद में किस में जाके कन्वर्ट हो गई, उर्दू में कन्वर्ट हो गई। तो एक तरीके से हिंदी में कई तुर्किश, अरबिक और जो पर्सियन वर्ड्स थे उनके एब्जर्व होने से ही जो लैंग्वेज इस्टेब्लिश हुई थी उसको जुबान ए हिंदी कहा गया, और उसी को ही बाद में क्या कहा गया, उर्दू कहा गया। और उर्दू को भी फिर कई मुग़ल एम्परर ने पैट्रोनेज दिया था, और इसी पैट्रोनेज की वजह से उर्दू लैंग्वेज में भी लिटरेचर काफ़ी क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। साथ ही साथ तो एक तो हम कह सकते हैं कि इस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम उर्दू लैंग्वेज जो है डेवलप हुई है इंडिया में। इसके साथ ही हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, राइट, मैनी वर्ड्स फ्रॉम अरबिक, पर्सियन, तुर्किश, राइट, जो हमारी हिंदी है, चाहे ब्रज भाषा है या जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, राइट, उनमें क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं। तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है या हिंदी है वो अरबिक, पर्सियन और तुर्किश वर्ड से क्या हुई हैं, तुर्किश वर्ड जो है वो मर्ज हुए हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जब उर्दू का डेवलपमेंट हुआ तो उर्दू ने ही जो इस्लामिक लिटरेचर था और हिंदी लिटरेचर था उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया है, राइट। सो थ्रू दिस अटेम्प्ट वाज मेड टू इंटीग्रेट द लिटरेचर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इसके साथ ही कई जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज या कोर्ट लैंग्वेज के रूप में भी क्या किया था, मान्यता दी थी। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट था, राइट, भक्ति मूवमेंट पर भी इसका इन्फ्लुएंस रहा है। एक तरीके से यहाँ पर जब जो था इधर उर्दू लैंग्वेज में कई लिटरेचर लिखे जा रहे थे, उसी समय पे भक्ति मूवमेंट पर भी इसका इन्फ्लुएंस रहा है। फोर्थ इज इन्फ्लुएंस ऑन क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर हो जाएगा, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी अरबिक वर्ल्ड में जो आर्क्स होते हैं या डोम्स होते हैं, हमारे यहाँ पर जो नागर शैली थी, राइट, इन इंडिया नागर शैली में जो टेम्पल्स थे वो कंस्ट्रक्ट होते थे। तो जो बिल्डिंग्स थी या टेम्पल्स होते थे वो नागर शैली में या हमारी जो इंडिजीनियस शैली थी उस शैली में ही बिल्ड किए जाते थे। परंतु बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम जो अरबिक में जो आर्केस प्रिवलेंट थे और जो डोम्स प्रिवलेंट थे, राइट, इस टाइप के जो कई स्ट्रक्चर्स थे उनका इन्फ्लुएंस हमारी आर्किटेक्चर पर पड़ा है, राइट। तो हमारी जो बिल्डिंग्स थी उनमें आर्क्स और जो डोम्स है, राइट, डोम्स और आर्क्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया है। और उसके बाद में आफ्टर द मुगल पीरियड और वी कैन से दैट दिल्ली सल्तनत, भारत के जो कई मंदिर हैं उसमें मुस्लिम आर्ट का जो इफेक्ट है वो देखा जा सकता है, राइट। और इस तरीके से जो अरबिक और एक तरीके से जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था और इंडियन जो आर्किटेक्चर था उसके जो कंबाइन जो आर्किटेक्चर थे उनको क्या कहा गया था, इंडो इस्लामिक आर्ट कहा गया, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हिंदू एवं मुस्लिम आर्ट थी, राइट, उसके कॉन्टेक्ट में आने से ही जो आर्ट डेवलप हुई थी उसको इंडो इस्लामिक आर्ट कहा गया। इंडो इस्लामिक मतलब जो इस्लाम से इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर था और हिंदुओं से या हम एक तरीके से जो नागर शैली थी उससे इन्फ्लुएंस जो आर्ट और आर्किटेक्चर था। तो जो कंबाइंड या जो न्यू स्टाइल थी उसको इंडो इस्लामिक जो है स्टाइल कहा गया था। और इसका जो इस्लाम का जो इम्पैक्ट था आर्किटेक्चर पर उसको हम भारत के कई जो फोर्ट्स हैं या फिर जो कई बिल्डिंग्स हैं उन पर भी देख सकते हैं, जैसे रोमानी नगर बिल्डिंग ऑफ आमेर हो जाएंगे, पैलेसेस ऑफ बीकानेर हो जाएंगे, फोर्टिफिकेशंस ऑफ जोधपुर हो जाएंगे, ओरछा हो जाएंगे, राइट, और डीग्स, इन पर इस्लाम का इन्फ्लुएंस रहा है। तो जो आर्किटेक्चर है वो क्या हुआ है, आर्किटेक्चर पर भी इस्लाम का इन्फ्लुएंस रहा है। ओके, नाउ वी विल सी द क्रिश्चियनिटी। सो एट फर्स्ट we would see how the Christianity established, right, किसके द्वारा established की गई। तो अब हम जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। See,
क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, क्रिश्चियन रिलीजन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय जीसस क्राइस्ट। तो जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स है, राइट, वही क्रिश्चियनिटी का क्या है, बेसिस है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वी वुड अंडरस्टैंड अबाउट जीसस क्राइस्ट। सो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो इज़राइल में हुआ था, राइट। सो जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन इज़राइल, राइट, इन अ काउसेड, और जो प्लेस का नाम था वो बेथलेहेम था, राइट। तो मैरी के हाउस में जो काउसेड था बेथलेहेम में, जो कि कहाँ पर है, जेरूसलम में। सो जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन जेरूसलम, राइट, इन बेथलेहेम, इन काउसेड, राइट, जो कि क्या था, मैरी के घर था, उसमें जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, राइट। और जीसस क्राइस्ट ने अपनी जो आइडियोलॉजीज थी, अपने जो व्यूज थे, अपनी जो टीचिंग्स थे, उससे जो इज़राइल के ज्यूज थे उनको अट्रैक्ट किया था। और जब इज़राइल के ज्यूज जीसस क्राइस्ट से अट्रैक्ट हो रहे थे, तो वहाँ के जो कंजर्वेशनिस्ट या जो रिलीजियस लीडर थे, राइट, रिलीजियस लीडर्स ने, जो जूइश रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को अपोज किया। साथ ही साथ जो ज्यूइश रिलीजियस लीडर थे, दे क्रूसिफाइड जीसस, राइट, और उन्होंने क्रॉस पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया था। बट ऐसा माना जाता है कि जीसस रोज अगेन आफ्टर 3 days, और वो 50वें दिन 50th डे जो था वो हेवन में चले गए थे, राइट। और यहीं से जो है क्रिश्चियनिटी की शुरुआत मानी जाती है, राइट। जीसस हैज 12 मेजर डिसाइपल्स, राइट, और उन्होंने ही फिर क्रिश्चियनिटी को जो है प्रोपोगेट किया था। जो क्रिश्चियनिटी था, क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फेमस हुई है वो आफ्टर द रोमन एम्पायर, राइट। रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन जो था डिक्लेयर कर दिया था। तो जैसे ही रोमन एम्पायर, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा एम्पायर था, रोमन एम्पायर ने जैसे क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन जो है डिक्लेयर किया, उसके बाद में जो क्रिश्चियनिटी है वो धीरे धीरे दुनिया के अदर पार्ट्स में भी जो है प्रोपोगेट हुई है। उसके साथ ही जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज आया, तो जो यूरोपियंस कंट्रीज थी, उन्होंने दुनिया के दूसरे कंट्रीज को कॉलोनी बनाया, राइट। व्हेन यूरोपियंस रूल्ड द कॉलोनीज, तो उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, राइट, उन्होंने कॉलोनीज में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट भी किया था। और इस तरीके से क्रिश्चियनिटी, राइट, क्रिश्चियनिटी यूरोपियन कंट्रीज से निकलकर, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, इंडिया हो, या फिर दूसरी कंट्रीज हो, उसमें भी जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स की संख्या जो है डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ कोलोनियलिज्म क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया, और उन्होंने इंडिया में फिर क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया। नाउ वी विल सी कि भारत में कितने प्रकार के क्रिश्चियंस जो हैं पाए जाते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस फाउंड इन इंडिया। सबसे पहला क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रंस ऑफ, राइट, द चिल्ड्रंस ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ यूरोपियन सेटल इन इंडिया। सो ऐसे क्रिश्चियन जो कि यूरोप के इनहेबिटेंट्स थे, जो कि इंडिया में आके सेटल हो गए थे, उनके चिल्ड्रंस को पहले प्रकार के जो है क्रिश्चियंस मान सकते हैं। दूसरे क्रिश्चियन में वो लोग आते हैं जो कि कन्वर्जन के द्वारा क्रिश्चियन बने हैं, राइट। सो दोज क्रिश्चियंस हु हैव बीन मेड क्रिश्चियन बाय कन्वर्जन, राइट, जो कि भारत की शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, मुस्लिम्स और हिंदूज, राइट, इनके कन्वर्जन से ही उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को जो है फॉलो किया है। फिर तीसरे में क्या हो जाएंगे, द क्रिश्चियंस हु आर द कंबाइंड ऑफ दीज 2 फॉर्म्स। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे क्रिश्चियन जो या तो यूरोपियन जो कि सेटल हुए हैं इंडिया में, उनकी संतानें हैं, या फिर जो कन्वर्जन से बनी है, तो तीसरा प्रकार उस तरीके से हो जाएगा। अब इसको इसीलिए समझा रहा, इसको हमने इसीलिए देखा है क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी में भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं किया जाता है, और वी कैन से दैट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ caste stratification. So there is no concept of caste stratification or untouchability in Christianity. But India में
कई ऐसी बिहेवियर्स हैं, राइट, कई ऐसी बिहेवियर्स हैं और कई ऐसे कस्टम्स हैं जो हिंदुइज्म में प्रिवलेंट है, लेकिन कुछ जो क्रिश्चियन जो कि कन्वर्जन से क्रिश्चियन बने हैं उनमें अभी भी हिंदुइज्म के कुछ बिहेवियर्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो कास्ट राइट्स हैं, राइट, या कास्ट जो बिहेवियर है जैसे अनटचेबिलिटी है, ये भी क्रिश्चियनिटी में पाई जाती है, परंतु ये किन में पाई जाती है, राइट, जो कि कन्वर्जन से बने। तो जो भारत में ऐसे क्रिश्चियंस जो कि कन्वर्जन से क्रिश्चियन बने हैं उनके साथ में अनटचेबिलिटी जो है भारत में देखने को मिलती है, और वी कैन से दैट अनटचेबिलिटी इज प्रिविलेंट इन क्रिश्चियनिटी, राइट, एंड अनटचेबिलिटी इन फाउंड, राइट, तो उनको जो अनटचेबल, एक तरीके से अनटचेबिलिटी उनके साथ में की जाती है जो कि कन्वर्जन से क्रिश्चियन बने हैं। इसके साथ ही हिंदुइज्म के साथ ही क्रिश्चियनिटी में भी क्या है कि कई माइथोलॉजीज स्टोरीज हैं, राइट, और जो गॉड के मिरेकल्स हैं वो वैसे क्या है, माइथोलॉजीज हैं जो कि गॉड के मिरेकल को बताती हैं, right? Now we will see the sects of Christianity. See, because of the ideological conflicts, there are two sects of Christianity. तो क्रिश्चियनिटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, रोमन कैथोलिक हो जाएगा, राइट। सो सिंपली जो रोमन कैथोलिक सेक्ट है या रोमन कैथोलिक ग्रुप है, ये जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट, और उनके ही जो ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग्स हैं, उनको ही प्रोपोगेट करते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं। जबकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे ही जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें कई ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, कई ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स थे, राइट, उनके अगेंस्ट में जो क्रिश्चियनिटी अस्तित्व में आई है उनको ही क्या कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, राइट। तो जो प्रोटेस्टेंट हैं वो लिबरल क्रिश्चियन है, राइट, जिन्होंने न्यू आइडियाज़ को, न्यू व्यू पॉइंट्स को जो है न्यू व्यूज पॉइंट को जो है एक्सेप्ट किया है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो रोमन कैथोलिक है, राइट, रोमन कैथोलिक सेक्ट टीचेस द रिलीजियस टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं, व्यूज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको ही ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और अमेरिका हो, यूरोप है या एशिया है, उनमें जो कई रोमन कैथोलिक चर्च हैं उनको ही वैलिड माना जाता है और उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, राइट। जो चेयरमैन है वो, राइट, द चेयरमैन ऑफ दीज डिस्कशंस इज पोप फ्रांसिस। जो पोप फ्रांसिस है उसको चेयरमैन या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हेड माना जाता है। सो स्पिरिचुअल हेड इज पोप फ्रांसिस, राइट, जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं, राइट, और इनको रोमन कैथोलिक का जो है हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट हो जाएगा। तो क्रिश्चियनिटी में कई ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स थे, कई ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स थी, राइट, और कई ऑर्थोडॉक्स क्या थी, कस्टम्स थी। इस वजह से इसके विरोध में जो सेक्ट सामने आया उसको क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट कहा गया, राइट। तो दिस सेक्ट ओरिजिनेटेड इन अपोजिशन टू द कैथोलिक सेक्ट, क्योंकि कैथोलिक सेक्ट की जो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजीज थी, कस्टम्स थी, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंट जो था वो एग्जिस्टेंस में आया है अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर, राइट। इनका पर्पस क्या था, द मेन पर्पस ऑफ दिस सेक्ट इज टू कैरी आउट द रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज इन क्रिश्चियनिटी। तो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज को प्रोपोगेट करना है और आगे बढ़ाना है, राइट। द प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन होल्ड्स दैट जो सैक्रामेंट्स हैं आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट। इसके साथ ही जो गॉड को इंटेलेक्चुअली जो है अचीव किया जा सकता है विद हार्ट। तो यदि आपका जो है जो है इंटेलेक्चुअली या एक तरीके से आप शुद्ध हैं, आपका दिल साफ है, तो आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो सैक्रामेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। साथ ही साथ ये जो
प्रोटेस्टेंट हैं, ये आइडल वर्शिप को भी क्या करते हैं, अपोज करते हैं, राइट। और ये रिचुअल्स को मीन्स मानते हैं, एंड्स नहीं मानते हैं, राइट। इसीलिए ये पोपिज्म को भी क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्लियर। नाउ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी। अब सबसे पहली चीज अगर हम देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी हमारे देश में आई कैसे, या क्रिश्चियन रिलीजन कैसे भारत में एंटर हुआ। तो जाहिर सी बात है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, राइट। और कई यूरोपियंस जो कंपनी है वो भारत में आई हैं, जैसे पुर्तगीज़ हो जाएंगे, डच हो जाएंगे, फ्रांसीसी हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स हो जाएंगे। और धीरे धीरे अगर हम देखें तो उन्होंने भारत से ट्रेड भी किया है, बट एट लास्ट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत में ट्रेडिंग में जो है मोनोपोली प्राप्त कर ली थी और इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। तो जैसे ही कॉलोनी बना था तो 1813 का जो एक्ट था, राइट, 1813 के एक्ट के बाद में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भारत में क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगेशन के लिए जो है उनको अधिकार दे दिया गया था। तो बाय 1830 जो एक्ट था, 1813 एक्ट के माध्यम से क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगेशन के लिए जो है अधिकार दे दिया था। और वहीं से जो है एट अ लार्जर पेस क्रिश्चियनिटी हमारे देश में, क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो हमारे देश में स्प्रेड होता चला गया, राइट। और जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स थे वो इंक्रीज होते चले गए, राइट। और चूंकि जो ब्रिटिशर्स थे, राइट, उन्होंने लगभग 250 ईयर्स तक इंडिया पर जो है शासन किया है, इसीलिए उनके रूल्स के माध्यम से, रेगुलेशंस के माध्यम से जो है क्रिश्चियनिटी भारत में प्रोपोगेट भी हुई है और उसका इन्फ्लुएंस भी इंडियन सोसाइटीज़ पर रहा है, राइट, जिनको हम एक एक करके समझेंगे, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि जो इंग्लिश कल्चर है, राइट, जो इंग्लिश कल्चर है वो हमारे देश में हावी हुआ है और अभी भी उसका इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पर है, राइट। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू आवर ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी के अनुसार हमारे जो एंसेस्टर्स थे, राइट, पूर्वज थे, वो धोती कुर्ता को वियर करते थे। परंतु इंग्लिश कल्चर, जैसे ही इंग्लिश कल्चर इंडिया में एंटर हुआ है, राइट, इंडियंस ने सूट, कोट, राइट, टाई वगैरह जो है पहनना शुरू कर दिया है, राइट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ड्रेसिंग है, राइट, ड्रेसिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है। सेकंड क्या हो जाएगा कि क्रिश्चियनिटी में जो फैमिलीज होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, बट इंडिया में जॉइंट फैमिली प्रेवलेंट था और क्रिश्चियनिटी के इम्पैक्ट के कारण ही जो है जॉइंट फैमिली जो है रिड्यूस हुई हैं या डिमिनिश्ड हुई हैं और न्यूक्लियर जो फैमिली है वो अभी भी जो है इंक्रीज होती जा रही है। साथ ही साथ जो इंडियन वुमन है उसका स्टेटस भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, राइट। जो वीमेन है उनको इंग्लिश कल्चर की वजह से एक तरीके से अगर हम देखें तो वीमेंस वर अलाउड टू एजुकेशन, राइट। तो वीमेंस को एजुकेशन के अलाउ किया गया है। साथ ही साथ भारत में जो पर्दा सिस्टम हो जाएगा, राइट, या सती सिस्टम हो जाएगा, या फिर जो विडो रिमेरेज स्टार्ट है, ये सब बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो अगर हम देखें तो सती सिस्टम जो है वो ब्रिटिश गवर्नर ने ही एबोलिश किया था। विडो रिमेरेज जो है स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स हो जाएगा। और जो पर्दा सिस्टम है, राइट, वीमेन के लिए एजुकेशन हो जाएगा और वीमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। इसके पीछे भी जो है क्रिश्चियन, या हम एक तरीके से जो क्रिश्चियनिटी को जो है हम क्रिश्चियनिटी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। फिर अगला हो जाएगा जो ब्रिटिश रूल था, उस समय पे जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज थी इंडियन सोसाइटी में उनको प्रेवलेंट माना गया था, राइट। अगर हम देखें तो जो सल्तनत पीरियड था, सल्तनत पीरियड में जो स्लेव था, राइट, स्लेव सिस्टम डेवलप्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। और भारत में अनटचेबिलिटी भी प्रेवलेंट थी। तो एक तो स्लेवरी भारत में थी, साथ ही साथ क्या थी, अनटचेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसकी वजह से जो लोअर कास्ट थे और जो स्लेव्स थे उनके साथ में ह्यूमन बिहेव नहीं किया जाता था। लेकिन जो क्रिश्चियंस थे,
राइट उन्होंने या एक तरीके से ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट के कारण ही हमारे देश में जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हैं उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है या उनको प्रमोट किया गया है, और जो स्लेवरी है उसको एबोलिश किया गया है, और अनटचेबिलिटी को भी जो है कम करने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ जो रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एज और जो इकोनॉमिक स्टेटस है राइट उसको इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पर जो है कई एफर्ट्स किए गए थे। साथ ही साथ जो इंडियन इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी पहले जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, लेकिन आफ्टर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भारत में कई फैक्ट्रीज जो है क्या हुई है, इस्टेब्लिश्ड हुई हैं, और उसकी वजह से ही भारत में जो मशीन कल्चर है वो डेवलप हुआ है। तो फैक्ट्रीज और वी कैन से दैट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई हैं, मशीन्स इस्टेब्लिश हुई हैं। इसकी वजह से जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और एक तरीके से इसी जो फैक्ट्री सिस्टम है या जो मशीन कल्चर है इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो है हमारे कल्चर पर और हमारी सोसाइटी पर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं राइट। इसी की वजह से अगर हम देखें तो जो जॉइंट फैमिली डिमिनिश हुई है राइट, न्यूक्लियर फैमिली इवॉल्व हुई है, फिर वर्किंग जो कल्चर है वो इम्प्रूव हुआ है। साथ ही साथ जो सोसाइटीज़ हैं अगर हम देखें तो पहले जो फार्मर होते थे, पीपल प्रेफर टू फार्मिंग राइट, परंतु फैक्ट्रीज की इस्टेब्लिश होने से जो है मिडिल क्लास का क्या हुआ है, मिडिल क्लास अस्तित्व में आई है। साथ ही साथ जो इक्वालिटी राइट, द फर्स्ट टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी इज दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड ह्यूमन बीइंग्स शुड हैव म्यूचुअल हेल्प राइट, लव राइट, कंपैशन, काइंडनेस, टॉलरेंस, जेनरसिटी राइट। तो एक तरीके से ये तो लगभग हर रिलीजन में था, परंतु क्या था कि रिलीजियन जब जो ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी होती है, उसकी वजह से कई बार जो है सोसाइटी में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं राइट। तो उन प्रॉब्लम्स को कम करने में भी क्रिश्चियनिटी में अपना जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरकास्ट मैरिजेस राइट, हमारे अगर हम देखें तो इंडिया में वर्ण सिस्टम वाज प्रेवलेंट, और वर्ण सिस्टम जो था वो बेस्ड हो गया बर्थ राइट। तो वो जब वर्ण सिस्टम बर्थ पर बेस्ड हो गया तो उसी से कास्ट सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, और कास्ट सिस्टम से ही जो था अनटचेबिलिटी स्टार्ट हुई, और अनटचेबिलिटी जो थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो इंटरकास्ट मैरिज थे उनको हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं किया जाता था। परंतु बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी जो इंटरकास्ट मैरिज है या जो लव मैरिज है राइट, वो इंडिया में उनको एक्सेप्ट किया जाने लगा। साथ ही साथ अनटचेबिलिटी को कम करने में भी कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर जो हिंदू एक तरीके से हमारे जो हिंदुइज्म में भी जो कुछ भी राइट ईवल्स थी राइट, सोशल ईवल्स थी, जो भी ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स थे उनको सुधार करने के लिए जो हिंदू रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे राइट, उन्होंने हिंदू रिलीजन के प्रोपोगेशन में जो है इम्पोर्टेंट काम किया है। साथ ही साथ हिंदुइज्म में या हिंदू धर्म में रिफॉर्म के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले किया है। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ राइट, इन्होंने जो ईवल्स थे हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट्स थे उनको कम करने में अपना योगदान दिया है राइट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी सोसाइटी में सोशल ईवल्स थे, सोशल प्रैक्टिसेस थी राइट, उनके इराडिकेशन में क्रिश्चियनिटी ने अपना रोल प्ले किया है राइट। सो दिस वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी राइट। सो दिस इज सो वी हैव फिनिश्ड this topic. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.